Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. Now, in our Zoom class, we have started this topic delegation of authority and we also have done elements of delegation of authority. इतना हमने कर लिया था अपनी Zoom class में. Now today, in this video, I'll be posting about the importance of delegation of authority and we'll also be starting the next topic, that is centralization and decentralization, and that is the last topic of your 5th chapter, that is organizing. Okay. Now before discussing about the importance of delegation of authority, we need to first understand delegation of authority. ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पहले से definition and what is all about delegation of authority हमने कर लिया है. But I'll just repeat once again कि delegation of authority होता क्या है. Delegation of authority is, as you all know, that this word delegation, इस word का क्या meaning है? Delegation का means होता है transfer, or you can, in simpler words, you can say giving, or you can say sharing. Delegation of authority is that a single manager cannot do all the work on his own. So what he does is he shares his responsibilities with his subordinates and he keeps only that work to himself. He keeps only that work with himself which as a manager he can only do it. But before sharing the responsibilities, he also keeps in mind the skills, qualification, talent of the subordinates whom he is giving the work. Delegation of authority में ये होता है कि एक मैनेजर, जैसा आप सबको पता है, कि वो सारा काम खुद नहीं कर सकता है. स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल सर क्या सारा काम खुद कर सकते हैं? अकाउंट्स का भी खुद देख ले, डिसिप्लिन भी मेंटेन कर लें, डांस, म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, क्या वो सब संभाल सकते हैं? नो, ही इज नॉट अ सुपरमैन कि सारा काम वो खुद कर लें. सो व्हाट ही डज इज, वो क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेते हैं. द टीचर हु इज गुड एट डांसिंग और मे बी सिंगिंग और मे बी म्यूजिक, उन्हें कल्चरल का काम दे देते हैं. द टीचर हु इज गुड एट स्पोर्ट्स, उन्हें स्पोर्ट्स का काम. The teacher who is strict, who is able to maintain the discipline in the school, उन्हें discipline का काम दे देते हैं. The same way, वो अपनी responsibilities क्या कर रहे हैं, वो share कर रहे हैं. तो share करने से पहले वो क्या देख रहे हैं कि वो teacher capable है भी या नहीं है, उसमें वो talent और skill है भी या नहीं है. And principal sir अपने पास कौन सा काम रखते हैं? अपने पास वो सिर्फ वो काम रखते हैं which as a principal he can only do it. जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनके सिग्नेचर होंगे, कुछ जगह सिर्फ वही डिसीजन ले सकते हैं, राइट? तो वो काम वो अपने पास रखते हैं. अदरवाइज व्हाट ही डज इज ही शेयर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हिज सबऑर्डिनेट्स. पर दिमाग में क्या रखते हैं कि वो सबऑर्डिनेट केपेबल है या नहीं है, उस काम को करने लायक है भी या नहीं है. Right, and that is delegation of authority. I repeat once again, delegation of authority is that a manager cannot do all the work on his own, so he shares his responsibilities with his subordinates, keeping in mind the skills, qualification, talent of the subordinates, and he keep only that work with himself, which as a manager he can only do it. This is delegation of authority. Now we'll do the importance of delegation of authority. ऐसा करने से क्या फायदा है, क्यों इतना important है शेयरिंग करना? The first reason is, this is the main reason that it reduces the workload of manager. काम का बोझ, workload is what? काम का बोझ. It reduces the workload of manager. Imagine if that principal sir had to do all the work on his own. सारा काम खुद करना पड़ता तो क्या होता? कोई भी काम क्या ढंग से होता? नो. So by delegating
he is able to reduce the workload of he is able to reduce the workload. Now second importance is effective management. जो भी वर्क मैनेज हो रहा है, whatever business activities is being performed in the organization or any activity which is being performed in the organization will be performed in an effective manner. Effective manner means सारे अच्छे से activities होंगी in a smooth manner and the goal will be achieved. Why? The reason is because देखो मैनेजर का वर्कलोड कम हो गया है बाय डेलीगेटिंग. दूसरों से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ली तो मैनेजर का वर्कलोड कम हो गया है. एंड नाउ द मैनेजर इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पॉर्टेंट वर्क. मैनेजर इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क. वो अब छोटे छोटे कामों में नहीं लगे हुए हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ली है. रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने से पहले उन्होंने ये भी देखा कि सामने वाला स्किल्स टैलेंट है या नहीं है. दैट मीन्स स्पेशलाइज्ड पर्सन इज डूइंग द वर्क, राइट. एंड हियर बिकॉज उनका काम कम हो गया, वर्कलोड कम हो गया, तो वो क्या कर पा रहे हैं मैनेजर इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पॉर्टेंट वर्क. And that is why there is effective management in the organization. जो भी काम हो रहा है effectively हो रहा है. Effectively means अच्छे से हो रहा है, in a smooth manner हो रहा है and the goal is achieved on time. क्यों? The reason why है कि मैनेजर अब important work में concentrate कर पा रहे हैं and उन्होंने काम शेयर कर दिया है. and किसको दिया है? एक specialized person को दिया है, right? So the work is done in an effective manner. Now coming to the third importance, employees development. Now how this delegation of authority will lead to development of employees. Delegate करने से employees का कैसे development होता है. Now see students, if you are delegating the authority, if you are sharing the responsibility with any person, that person will do that work, he will gain experience in doing that work and he will do that work in his own style. And this way what will happen? This will lead to the development of employees. Like for example, suppose in a school, Teachers' Day celebration, like Teachers' Day program has to be celebrated, it has to be organized. So what I did was, मैंने क्या किया, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कल्चरल में रखा जहाँ पे they have to perform singing, dancing और they have to play the musical instruments. कल्चरल के काम के लिए रख दिया. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को क्या काम दे दिया, ये काम दे दिया दैट यू हैव टू सी द डेकोरेशन पार्ट. स्टेज को कैसे डेकोरेट करना है, यू हैव टू डू इट. देयर वर थर्ड सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैंने टीचर्स के वेलकम के लिए काम दे दिया कि यू हैव टू वेलकम द टीचर्स, यू हैव टू मेक देम सिट एट देयर प्रॉपर प्लेसेस. जहाँ पे उनकी सीट है वहाँ पे आपको बिठाना है. यू हैव टू वेलकम देम विद फ्लावर्स, राइट. So this way what I have done, I have given the responsibilities to various set of students. Now those students will gain experience. वो काम करेंगे, हॉस्पिटैलिटी का काम करेंगे, टीचर्स को अपनी जगह बिठाएंगे, राइट. द सेम वे जो कल्चरल है वो डांस परफॉर्म, म्यूजिक परफॉर्म करेंगे. स्टेज डेकोरेशन वाले स्टेज डेकोरेट करेंगे, प्रॉपर डेकोरेशन करेंगे. तो इससे क्या होगा, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. ये सब करके सीखने को मिलेगा. दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस कि काम कैसे करना है, कैसे हम टीचर्स को बुलाएंगे, हाउ वी विल वेलकम देम, कौन से फ्लावर्स देने. सो दे विल बी टेकिंग देयर ओन डिसीजंस एंड अपने स्टाइल से वो काम करेंगे. दे विल बी मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज, राइट. तो इससे कुछ ना कुछ वो स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा.
And this is why we are saying that delegation of authority leads to the development of employees. ये तो मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया. If we talk about any organization also, अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को कोई काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी है, तो वो जो एम्प्लॉय है अपनी स्टाइल में काम करेगा, उसको वो काम करके एक्सपीरियंस गेन होगा. ही विल बी टेकिंग हिज ओन डिसीजन कि काम कैसे करना है, मुझे कैसे फिनिश करना है, कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है. तो उससे क्या होगा? उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा. सो delegation of authority actually leads to the development of employees. Okay, now coming to the fourth importance, motivation of employees. By delegating authority, हम जो responsibility share कर रहे हैं, authority delegate कर रहे हैं, उससे employees motivated भी feel करती है. It actually boosts the confidence of employees also. अब मैंने जिस employee को काम दिया है, तो एम्प्लॉय क्या फील करेगा? अंदर से उसे ये फील होगा, ओके मैं शायद सबसे बेस्ट हूँ, तभी ये मुझे काम दिया गया है. राइट, आई एम द बेस्ट अमंग द लॉट. जितने लोग हैं शायद मेरे में कैपेबिलिटी है, और मैनेजर ये सोचता है कि हाँ आई एम द बेस्ट. सो इट एक्चुअली मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज एंड इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस. सिंपल एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम में टीचर किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाती है, तो मॉनिटर जो बनता है स्टूडेंट, उसको अंदर से बहुत फील गुड होता है. राइट, एवरीबडी फील्स गुड अगर किसी को मॉनिटर या क्लास मॉनिटर बनाया जाए. क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से शायद बेस्ट मैं हूँ. राइट, या टीचर के लिए मेरी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. दैट इज़ वाई शी हैज सेलेक्टेड मी. दिस इज वॉट वी ऑल फील. हम भी जब छोटे थे तो हमें भी यही लगता था, कोई मुझे क्लास मॉनिटर बनाए तो मुझे क्या लगेगा कि हाँ मेरी कोई इंपॉर्टेंस है, या आई एम द बेस्ट अमंग द लॉट. दैट इज वाई मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. सो इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी. ऐसे ही सब स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करता है जो क्लास मॉनिटर बनते हैं. तो यहाँ पे भी वही है, जिन एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है, they feel motivated about it. Their confidence boosts up. They start feeling that okay, I am valuable, yeah, I am important for my senior. That is why they have given me the responsibility. Right? So it actually motivates the employees also. Now coming to the fifth point, facilitates organizational growth. That means डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है. कैसे होती है? नाउ इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, पर दिमाग में क्या रखता है कि वो सबॉर्डिनेट केपेबल है या नहीं है, प्रॉपर स्किल्स एंड टैलेंट एंड क्वालिफिकेशन है या नहीं है. उसी के बाद काम दिया जाता है. एक तरह से मैनेजर क्या देख रहा है कि वो सबऑर्डिनेट अपने काम में एक्सपर्ट है या नहीं है. राइट, दैट मीन्स प्रॉपर डेलीगेशन से, प्रॉपर देख के कि हाँ ये क्वालिफाइड है तभी इसको काम देना है, उससे क्या होगा? द वर्क विल बी डन बाय एन एक्सपर्ट, एंड दैट इज वाई इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या देख के काम देते हैं? ऐसे ही नहीं दे देते हैं कि किसी को डांस का काम तो आता ही नहीं है, हमने उसको डांस का काम दे दिया. ऐसे आप करोगे? कभी भी नहीं करोगे. यू विल बी गिविंग द वर्क ऑफ डांस और कल्चरल टू अ टीचर हु इज स्पेशलाइज्ड इन इट, जिसको इंटरेस्ट है, हु हैज एक्सपीरियंस इन इट, उन्हीं को तो दोगे. तो मतलब एक तरह से किससे काम करवाओगे? एक एक्सपर्ट से करवाओगे. एंड जब एक्सपर्ट काम करेगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. I hope students this point is clear. Now we come to the sixth point, basis of management hierarchy. Basis of management hierarchy.
Now if you remember this word hierarchy, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था. Hierarchy means is levels. By delegating authority, levels create हो जाते हैं. Like we have the top, middle, lower level. ऐसे ही levels create हो जाते हैं by delegating authority. अब मुझे जो काम देंगे वो कौन होंगे? वो मेरे सुपीरियर होंगे. And the superior is giving work to the subordinate. So a superior subordinate relationship is created. तो delegate करने से obviously काम कौन देगा आपको? एक आपका सीनियर ही तो आपको काम देगा. तो एक तरह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है. एंड उससे क्या होता है? हायरार्की, मैनेजमेंट के लेवल्स बन जाते हैं. सेम एग्जाम्पल जो टीचर्स डे का अभी मैंने एग्जाम्पल लिया. आई एम द टीचर, आई एम द सुपीरियर. मैंने जो 3 ग्रुप्स बनाए थे स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स कौन है? मेरे सबऑर्डिनेट हैं. सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड. राइट, द सेम वे प्रिंसिपल सर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की थी सबऑर्डिनेट्स के साथ, टीचर्स के साथ. तो कैसा रिलेशन क्रिएट हो गया? सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. लेवल्स बन जाते हैं क्योंकि सुपीरियर ही तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है. सो हियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड. Okay, now coming to the last point, better coordination.